Good afternoon, students. So I hope you are all fine. So we'll just wait for 5 minutes and then we'll begin the class. All right, let's begin. So I'll share the screen to the PDF which we have been covering for the past few lectures. So hopefully we will be able to complete it today. So आपको याद होगा कल हम बात कर रहे थे how colonization affects contemporary knowledge, right? So how traditional knowledge has been affected by colonization. All right. So I hope you remember yesterday's class, those of you who were here. So हमने बात की थी, how the colonizers they brought along their own cultural practices, right? वो अपनी knowledge साथ में लेके आए, Western scientific tradition को साथ में लेके आए, and they made sure that they dominated or imposed it on us, right? तो उसमें क्या था? It was a very systematic effort to curb the traditional methods of knowledge here, to curb traditional knowledge in India, and rather impose and promote Western scientific ideas. ठीक है, बिकॉज उन्होंने क्या किया कि दे ट्राई टू मेक अस फील इन्फीरियर, दे ट्राई टू मेक अस फील कि वी आर वेरी आउटडेटेड, अब हम लाइक हम काफी पीछे चल रहे हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? एंड दिस इज हाउ ग्रेजुअली एंड वेरी imperceptibly they just pushed their own agenda, right? तो इसकी बात कर रहे थे. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट जो भी हमने अब तक पढ़ा ना, लेट्स जस्ट सी हाउ कैन वी कंक्लूड द सेम, राइट? So to change a life based on traditional knowledge, where the traditional lifestyle includes norms, values, relations to nature, time, work and leisure, is extremely difficult, right? So जो एक ट्रेडिशनल वे से जो लाइफस्टाइल चल रहा है उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, उससे बाहर निकलना भी मुश्किल है, right? Many people who leave the traditional life experience, they feel that they are nobody, क्योंकि एक किसी पर्सन की जब पूरी आइडेंटिटी पूरी लाइफ ही उसके अराउंड रिवॉल्व करती है, वैसे ही चलती रही है, अगर आप उसको उस एक्सपीरियंस से दूर कर दोगे, उन्हें एकदम से बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, राइट? तो इसको, ये वाली बात को आप रिलेट कर सकते हो हमारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जब वहां पे कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी होती है, माइनिंग करनी होती है, कोई इंडस्ट्री लगानी होती है, तो उनको डिस्प्लेस किया जाता है, जैसे जब डैम्स बनाने होते हैं, राइट? दिस इज वाई ये वाले सभी वर्क्स का बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है कि वी कैन नॉट परस्यू डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स लाइव्स, at the cost of our ecology, at the cost of our environment, right? Then to establish a new social identity can mainly be done in two ways. They can reduce the importance of earlier knowledge and self consciousness, or they can use the achieved traditional knowledge as a platform for further learning, right? So now if you are displacing them, what possibly they could do? They can either, अगर they have to adapt to the new way of life, right? So they'll try to, एक होता है अपने मन को तसल्ली देना कि maybe this is not as important, right? And you just
also adopt other various methods of knowledge and whatever self consciousness. जैसे अगर इधर हम बात करें, यहाँ पे जो सिस्टम्स होंगे, लेट्स से अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के, वो ट्रेडिशनल होंगे, राइट? इन द नेक्स्ट ईयर्स, और इफ यू मूव बियॉन्ड दैट रेल्म, जो अभी के मेथड्स हैं, दे आर मोर मॉडर्न, दे आर मोर साइंटिफिक, बेस्ड इन एलोपैथी. तो अगर आपने दोनों में एक एक यूनिटी करनी है, एक आपने आगे मूव ऑन करना है, ट्रांजिशन करना है सक्सेसफुली, then what you would do, you would also try to adopt the newer methods, right? Or you can do one thing, that you just use that traditional knowledge which you have and you promote it and you further learn within that. एक होता है कि आप अपने ही कल्चर को क्लेम कर रहे हो, यू आर कंफर्टेबल विद दैट, चाहे वर्ल्ड आपके अराउंड चेंज हो रहा है, जो मर्जी वो आपको कहें कि इंडिया का या यहाँ का कल्चर तो आउटडेटेड है, बट यू आर प्राउड ऑफ इट एंड यू क्लेम इट and you are also ready to further learn within that, right? So age, program type, social security, these are extremely important factors for a successful transformation, right? Now see, this is what the author is trying to say here. अगर हमने किसी को ऐसे पुश करना भी है towards change, या वो मजबूरी से चेंज हो रहे हैं, तो then we need to provide them the right security, we need to provide them the right support so that the transformation, the transition can be easy. All right, now we'll take a look at the contemporary uses of traditional knowledge. So contemporary का मतलब होता है बेटा जो ये वाला टाइम चल रहा है, right? आपने ये मे बी कहीं पे न्यूज़पेपर में या अदरवाइज रीड करा हो वर्ड. So like you can say that yes, he is my contemporary, मतलब दोनों सेम टाइम पे थे. All right. So now let's see the integration with Western knowledge systems. तो अभी आजकल की जो indigenous knowledge है, traditional knowledge है, how is it related to Western scientific knowledge? So these are the various features of each which have been given, and you will notice that yes, in most cases they are quite opposite to each other. उनके features काफी drastically एक दूसरे से अलग हैं. So like indigenous knowledge is more qualitative in nature. There is more focus on the quality. There is a more focus on what kind of results we are getting, the quality of it. But Western scientific knowledge में ज़्यादा focus quantity पे होता है. Then indigenous knowledge is intuitive. Intuitive means that yes, you do rely on your intuitions, your sixth sense, right? अब जैसे उनको पता होता है पुराने टाइम के, अगर आपने कोई मूवीज या कार्टून्स में भी देखा हो, there used to be some people who could predict that it is going to rain, who could predict that this year there are going to be floods, right? They could make these predictions and they had no reason, they did not have any proper reasoning how they can do it, कि वो जो ऐसे conclusion पे reach कर रहे हैं, कैसे reach कर रहे हैं, but they used to go by what their intuition told them, right? So एक होता है ना, जैसे आजकल भी कई, I am not sure if you believe in them, well I don't believe in them always either, but we have these self-proclaimed godmen, right? And at times they make all these predictions, and if you ask them how can they make those predictions, they won't have a clear answer. Now see, कई तो बिल्कुल fraud भी हैं, but there are few people who are relevant, who are genuine, right? They go by their intuition. So they have these years of wisdom which helps them make all these conclusions, right? However, in terms of Western scientific knowledge, it goes by reasoning, it goes by logic, it is all based in rational principles. So I hope you know the word rational, right? Where it is very much linked with engineering, it is very much linked with science. तो इसमें अगर ये नहीं कि आपको सिर्फ कुछ लगा तो आप उसमें बिलीव कर रहे हो, नो, you go by what is the proper reasoning behind this, you go by what is the logic for believing so and so thing. All right, then indigenous knowledge is more holistic, which is holistic means it covers overall, काफी ज्यादा, it is an all rounder thing, right? होलिस्टिक होना कि किसी चीज का बहुत कंप्लीटली आपने उसका ध्यान रखना, या उसको एक ऐसे पर्सपेक्टिव से अप्रोच करना कि आप हर साइड से उसका देख रहे हो, कि फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, राइट? जैसे अगर हम बात करें होलिस्टिक सोल्यूशन निकालने की, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, राइट, कह लो हमारी इधर प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, तो उसका होलिस्टिक सोल्यूशन क्या होगा कि आप उसका इकोनॉमिक भी देखोगे, क्या कॉस्ट है सोल्यूशन का, सोशल कॉस्ट भी देखोगे, वेदर इट इज वाइबल और नॉट, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है या नहीं, कोई भी अगर आइडिया, तो उसको आपने पूरा हर एक साइड से एक्सप्लोर करना है, हर एक साइड से एग्जामिन करना है. रिडक्शनिस्ट मीन्स कि आप कोई काफी चीज का एक लिमिटेड व्यू ले रहे हो, काफी रिड्यूस करके देख रहे हो, मे बी आप सिर्फ यही देख रहे हो कि इस चीज का कितना फायदा होगा, एंड यू आर गोइंग अहेड विद द डिसीजन, चाहे आप डिसीजन मेकिंग में सिर्फ यही कंसिडर कर रहे हो. सो दैट इज अ रिडक्शनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. Then indigenous knowledge is moral and spiritual in nature.
वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज इज सपोजिटली वैल्यू फ्री। अब इंडिजिनस नॉलेज में क्या है, अगर कोई भी प्रिंसिपल्स हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हर एक का देखा होगा कि इसकी कॉस्ट क्या है, इसका क्या फायदा है, इसका नुकसान क्या है, वेदर ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें कि कोई कह लो क्योर है किसी डिजीज का, तो उसमें ये नहीं है कि वो कुछ सिर्फ कि हाँ ये दवाई है, इसको ये डिजीज है, इसको ये दे दो। नो, दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट द इम्प्लीकेशन, दे आर गोइंग टू टेक इनटू अकाउंट द साइड इफेक्ट्स। हाउएवर इन वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज, अगर हम यही वाले फील्ड की एग्जांपल लें, लाइक फार्माकोलॉजी, तो इसमें क्या है, यू विल नोटिस कि एट टाइम्स दे आर नॉट वरीड, ठीक है, मे बी दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द प्रॉफिट्स, मे बी दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द एफिकेसी एंड दे आर नॉट लुकिंग इनटू द साइड इफेक्ट्स। अब ये वाला काफी डिबेट जब कोविड की वैक्सीन आई हैं उस पर भी हुआ था। कई जो वैक्सीन बिल्कुल बिगिनिंग में ही अप्रूव कर दी थी, अभी कुछ महीने ही हुए थे कोविड को आए, पीपल वर स्केप्टिकल कि हाउ कुड यू नो प्रूव, इतना तो अभी मिनिमम टाइम क्लिनिकल ट्रायल्स को भी नहीं हुआ, एटलीस्ट जो भी प्रोसीजर है उतना टाइम तो लेना चाहिए। बट द जो हमारे ये फार्मा जाइंट्स हैं, इनका क्या आइडिया था कि इफ वी विल बी द फर्स्ट इन द मार्केट, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें होगा, right? So the western scientific principles, this kind of methodology, it is supposedly value free, they're more driven towards profit, they're more driven towards what will be the outcome, what will be the result. Then indigenous knowledge, it considers mind and matter together, right? So it is not just कि आप mind की ही सुनो या आप सिर्फ अपने heart की सुनो, सिर्फ brain से ही आप काम लो, ठीक है, उन्होंने दोनों को, mind also and matter also. Now mind is all this thing about meditation, all this thing about how it impacts you, ठीक है, ये जो ये वाली सारी बात होती है. Matter is the physical world around us. So you can also say this is both spiritual and physical world. अब वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज में आपने देखा होगा, या वेस्टर्न जो साइंस का सिस्टम है, या जो वेस्टर्न मेथोडोलॉजी है, एक वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग है, उसमें क्या होता है, इतना कोई पहले, अभी नो डाउट द ट्रेंड इज कैचिंग ऑन फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट इट वाज मोर मैकेनिस्टिक, इट इज मोर ऑफ दिस इज द प्रोसेस, दिस इज हाउ इट शुड बी डन. अगर आप ऑफिसेज भी देखें, ये जो हमारा एमएनसी कल्चर है, दिस इज ऑल फ्रॉम द वेस्ट, राइट, वहां पे इसकी बिगनिंग हुई है. सो इसमें क्या है, दे आर ऑल वरीड अबाउट एम्प्लॉइज हैं, how much are they adding to the company. They are not worried as much about how the employees are feeling और एक particular employee की कितनी growth हो रही है, so on so forth. ये वाले concerns की तरफ उनका इतना ध्यान नहीं है, right? I won't say कि बिल्कुल ध्यान नहीं है, but इतना नहीं है. And things you would notice, आजकल things change हो रहे हैं, आजकल काफी जैसे ध्यान दिया जा रहा है towards mental health, right? Any of you sports fans? हाँ जी. Who is fond of sports? Nobody? Yes, Akash, Jaspreet, Maninder, Nand Kishore, Naresh, Ritik. Yes, ma'am. Right. तो आपने बेटा ओलंपिक्स फॉलो किया था कि नहीं देखा इतना? नहीं मैम. ओके. सो इन केस यू हैड फॉलोड, आपने नोटिस किया होगा इस बार कुछ प्लेयर्स व्हाट दे डिड, लाइक एक तो यूएस की प्लेयर थी, राइट, शी वाज इन द जिमनास्टिक्स टीम, आई थिंक साइमन समथिंग वाज हर नेम, राइट. So she opted out of the contest. Why? Because she felt that mentally she is not feeling up to it, right? She felt that she needs a mental break, she needs to थोड़ा recharge अपने आप को करने के लिए, so she needs to take a break and she did that. अब ऑफ कोर्स इस बात की, इस डिसीजन की क्रिटिसिज्म भी हुआ कि टीम को उन्होंने छोड़ दिया एंड मोमेंट पे, बहुत अच्छी टीम थी, दे कुड हैव गॉट द गोल्ड मेडल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, right? But there was one section which really supported her as well, especially from the sports community, because they realized कि कितना stressful हो जाता है, कितना pressure होता है आपके, आपने जब इतने सालों से training की होती है, finally you get the chance to go to Olympics, and वहां पे अगर आप perform ना करो या आप ना कर पाओ, तो आपके पीछे कितने लोग हैं who are waiting for the result, right? So now this thing is changing, that there is a focus more on the person as well, rather than only what that person can do or what are the outcomes, क्या results हैं, ठीक है जी. Then based on talking about indigenous knowledge, it is based on empirical observation, right? So it is more based on क्या उनका खुद का experience रहा है. Empirical means based on your experience, क्या आपने क्या कोई चीज खुद experience की हो, आप उसी चीज में विश्वास करते हो. However, Western scientific knowledge is more about
experimentation and systematization. It is more focused on के experiment करो, पता करवा लो, ये करो, ठीक है, and they follow a particular system for the same. Now, indigenous knowledge is generated and held by the users themselves, right? So, जो people हैं indigenous people, वही वो knowledge को generate करते हैं, उनके पास ही वो knowledge होती है, वही उसको apply भी करते हैं. So, इसकी बहुत limited community है. अब western scientific knowledge में क्या आया on the other hand? अब जो आप books पढ़ रहे हो, right? वो आपने नहीं लिखी, आपने उसमें कोई contribution नहीं की, right? So, वो किसी experts ने लिखी and you are simply reading that. That knowledge has come to you. So it is generated by specialists. So we have these researchers, we have these authors, we have the doctors, so on and so forth, जो कि अपने अपने fields के experts हैं. They come up with this knowledge and ideas and then they share it to others, right? Then indigenous knowledge is diachronic, which is a long time series of information on one locality. However, the Western scientific knowledge, it's synchronic, which is short time series over a large area. So diachronic, why it has come since a very long time. It's a result of years of, you know, testing, experiments also, and even your observation and experience. ठीक है, वो कितने सालों का एक्सपीरियंस है जिससे कि हमें आज कुछ पता है कि हाँ, जो ये लोगों को पता है कि ये वाला हर्ब यूजफुल है, ये वाले हर्ब से बच के रहना चाहिए, ऐसे अगर एनिमल कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, राइट? अगर द सन की पोजीशन ऐसे है या क्लाउड्स की फॉर्मेशन ऐसे तो मतलब बारिश होगी. So it is a long time series that we are talking about. However, the information is about one very limited area, one locality, one community, one tribe. In terms of synchronic, we have had a very short time span जिसमें सारी जो आज हमारे पास present scientific knowledge है वो सारी generate हुई है, right? And of course that is applicable to a larger area. अब जो आप engineering के concepts पढ़ रहे हो वो किसी different country में भी engineering के concepts तो same ही रहेंगे. Same is true for medical knowledge. जो पता है कि हाँ fever ऐसे होता है या this is the medicine for same, this is the salt which should be given, that is going to remain same. All right. So let's move further. Now the integration of the two knowledge systems faces a number of barriers. अब आपने इधर नोटिस किया कि ये दोनों नॉलेज सिस्टम कितने अलग है एक दूसरे से, राइट? किसमें इसमें इंपॉर्टेंस किस चीजों को दी जाती है? वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज में डिफरेंट चीजों की इंपॉर्टेंस है, राइट? तो अगर हम इनका सोचे कि इनका एक कॉमन ग्राउंड हमें मिल सके, एक मिडल पाथ मिल सके, तो दैट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर श्योर, नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क पर से, a difficult task definitely, right? Thus the integration of the two knowledge systems faces a number of barriers. Now see, the first barrier is different perspectives. Now as you can also conclude from the chart that we just had a look on, that there is frequently a distinct difference in what indigenous peoples think are significant impacts and what policymakers and those in favor of development projects think are significant impacts. These differences are probably rooted in both the habits of mind and the practical priorities of each group. So एक हम अगर देखें, एक होता है you know, protecting the nature, going by the traditional method, जो जैसे चल रहा है वैसे. एक होता है जो अब न्यू हमारे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो एक पर्सन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरफ से सोच रहा है, उससे सोचना है कि हाँ वो अगर देख रहा है एक एरिया, वो उसमें देख रहा है कि इसमें से क्या हम कमाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. बट कोई जो ट्राइबल पर्सन है जिसका वो घर है, वो देख रहा है कि दिस इज हाउ आई सर्वाइव, दिस इज माय लाइवलीहुड, दीज ट्रीज आर इंपॉर्टेंट, दीज माउंटेन्स आर इंपॉर्टेंट एंड ही वर्शिप्स देम, राइट? सो आप देखोगे कितना ज्यादा डिफरेंस है पर्सपेक्टिव में, राइट? एक तरफ पे बिजनेसमैन है, डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट है, दूसरी टाइप पे एक कम्युनिटी है जो वहां पे कितने सालों से रह रही है, जिनका वो एक घर है, राइट? सो दिस इज वाई बहुत डिस्टिंक्ट डिफरेंस होता है, एंड इन दोनों को सेम पेज पर लेकर आना बहुत मुश्किल काम है, राइट? बिकॉज दोनों के जो द आइडियाज आर रूटेड इन हैबिट्स, ठीक है, जो उनकी हैबिट है, जो उनकी पर्सपेक्टिव है, जो उनका अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, एंड ऑल्सो द प्रैक्टिकल प्रायोरिटीज. नाउ द बिजनेसमैन वुड लुक एट, उनके लिए प्रायोरिटी क्या है? प्रॉफिट. उनके लिए प्रायोरिटी कि इससे हम कितना कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, कि कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं. बट फॉर द पीपल हु आर देयर, they are going to, you know, think about it in terms of that this is how we survive, this is our survival, this is our livelihood, this is the only home that we know. So the priorities are significantly different in each group.
देन वी हैव साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का बेटा मतलब होता है कि व्हेन यू आर डाउटफुल अबाउट एवरीथिंग, कि आप हर एक चीज की ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन करते हो कि अच्छा ऐसे ही होता है, कैसे नहीं होता, मतलब आपको ना कोई भी चीज को आप इजीली एक्सेप्ट नहीं कर लेते। You always question the reasoning behind it, whether it is true or not, whether it is possible or not, so on and so forth. Now, scientists are skeptical about the credibility or reliability of indigenous knowledge gathered through interviews, preferring hard data such as biophysical data. Some may dismiss traditional knowledge as subjective, anecdotal, and unscientific. So now let's just break this whole idea and take a look at the various parts. Skeptical, I already told you, to doubt the authenticity, किसी की मतलब उसकी सच्चाई को question करना. Then about the credibility और reliability, कि वो कितना की उसको believe कर सकते हो, वो कितना reliable है, ठीक है. अब जो इंडिजिनस नॉलेज का जो हमारे पास डेटा है वो तो हमारे पास इसी मेथड से आएगा ना, क्योंकि कम्युनिटीज लिमिटेड है. आप उनसे इंटरेक्ट करोगे, आप उनको पूछ सकते हो, दैट इज हाउ यू वुड नो. Now you might or might not have time to test everything that you are getting to know. You are probably going to rely on their own wisdom कि हाँ अगर ये लोग ये फॉलो कर रहे हैं, there must be some truth to it. However, जो साइंस का हमारी अप्रोच होती है बेसिकली यही होती है कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं, राइट. हम उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम अपने रिजल्ट देखेंगे, वो रिजल्ट देख के पूरा ये प्रोसेस देख के ही हम कंक्लूड करेंगे कि हाँ जी ये चीज पॉसिबल है या नहीं है, राइट. सो द साइंटिस्ट हैव देयर ओन वे ऑफ बिलीविंग थिंग्स, सो दे फाइंड इट हार्ड टू बिलीव व्हाटएवर दे गेट टू नो अबाउट इंडिजिनस नॉलेज. उनको क्या लगता है कि ये सब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव इट मींस कि हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकती. इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव. इट माइट बी ट्रू फॉर वन पर्सन, इट माइट नॉट बी ट्रू फॉर समबडी एल्स. देन एनेक्डोटल. नाउ एनेक्डोट्स आर जैसे आपके पेरेंट्स कई बार आपके साथ शेयर करते होंगे कुछ इंसिडेंट्स अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर कॉलेज लाइफ, अबाउट देयर स्कूल लाइफ, राइट, कि ऐसे हुआ था, दिस इज व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. दीज आर ऑल एनेक्डोट्स विच आर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किए हो, राइट. अब साइंटिस्ट को क्या लगता है कि ये एनेक्डोटल कैसे है. दे फील कि मे बी वन और पर्सन एक्सपीरियंस समथिंग एंड उसने उसी से मान लिया कि ये तो चीज ऐसे ही होती है, right. So there is not a basis to it, there is not a wide number of people supporting the same idea. Then it is also unscientific. Now how is it unscientific? You can easily guess, right, because scientific methods उस पे apply नहीं हुए, इसलिए they consider it unscientific, because scientists, they have a very rigid, let's say, criteria for considering something scientific or not, and that criteria indigenous knowledge does not match. All right. Then also politics. Now policymakers may resist altering established decision-making processes to accommodate the use of traditional knowledge for reasons having to do with an interest in controlling the process. Now what does this line mean? एक पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है. सी अब जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, जो पीपल इन पावर है, वो क्या चाहेंगे कि जो जैसे चीज चल रही है वैसी चलनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए, राइट. दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज, and especially a change which they do not completely understand themselves, right. So they do not want कि जो हमारा established एक processes है उसको हम change करें या उसको उसमें और चीजें include करें, right. See now in this term, in particularly in sense of this idea, our government is radically different. What is it doing? It is rather promoting the use of traditional knowledge. It is trying to include traditional knowledge in the mainstream, right. It is trying to incorporate traditional knowledge into the scientific methods as well, right, and for reasons having to do with an interest in controlling the process. Now see, government would want to control, that is why it is there in power, right. The government doesn't like के कुछ कोई और उस पे कुछ कर रहा है, ठीक है जी, या किसी और को हम पावर शेयर करने का वो दे. Right. So this is how the government works, and this is what their interest lies in, controlling everything, controlling the power. So protecting traditional knowledge. Now let's discuss how the traditional knowledge can be protected, right. So I'll give you a moment to read through these and then I'll explain the same. Just take a minute or two, read it.
All right, so now see very important points here, right? So notice the idea that preserving traditional knowledge also contributes to the cultural and political goals of self-determination and self-reliance, especially the ability to support traditional lifestyles by creating strong ongoing appreciation within the community of its history and its roots. So ये वाले जो words है ना, इससे हमारा जो सारा idea of the colonizers, of the British people, trying to make us feel inferior, वो सारा इसमें cover होता है. Why? Because अगर आप देखेंगे सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि आपने खुद अपना पाथ डिसाइड करना. In terms of political terms में इसका क्या मतलब होगा that the people have the right to determine what kind of government they want, who do they want as the government, के वो खुद वोट कर रहे हैं, खुद चेंजेस ला रहे हैं. So that is all self determination, right? Then self reliance is कि आप खुद पे rely कर रहे हो, you are not dependent on others, right? So preserving traditional knowledge contributes to these two goals. Of course, when you are preserving it, जो वो लोग हैं, they are self-reliant because they know what they have to do in case they are facing any problem, and also self-determination that they can decide, right? They decide what knowledge do they have, they decide to work on it, on preserving it, right? So on and so forth, especially the ability to support traditional lifestyles. Now, this also creates strong appreciation within the community of its roots and history. See, if efforts are made to preserve traditional knowledge, that gives, उससे ये मैसेज सेंड आउट हो रहा है कि दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट. आप उसी चीज को बचाओगे जो चीज इम्पोर्टेंट है, राइट? सो इससे अगर हम एफर्ट्स कर रहे हैं टू प्रिजर्व इट, दैट विल आल्सो लीड टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी बिकमिंग मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट द वैल्यू, राइट? अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज को सेव करने के लिए या कोई कल्चर है या कोई लैंग्वेज की बात करें, उसको सेव करने के लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं करे, तो वहां के लोगों को भी लगेगा कि मे बी दिस डजंट मैटर, राइट? अगर उसके लिए एफर्ट्स हो रहे हैं, जैसे टाइगर्स को बचाने के लिए काफी एफर्ट्स हो रहे हैं, लॉज बहुत स्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, कितनी टाइगर सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, राइट? एंड ऑफ कोर्स ओवर टाइम वी हैव एक्सपीरियंस्ड एन इम्प्रूवमेंट, जहाँ बहुत कम रह गए थे, अब स्टिल द टाइगर पॉपुलेशन हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, राइट? अब उसमें क्या है, क्योंकि ये इतने गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है, तो लोगों को, जो कॉमन पीपल हैं, चाहे उनको इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ना भी पता हो, उन्हें फूड चेन का ना भी पता हो, बट उन्हें ये मैसेज पता है कि यस, सेविंग टाइगर्स इज इम्पोर्टेंट, राइट? दिस इज व्हाई द गवर्नमेंट इज पुटिंग इन सो मच मनी एंड एफर्ट्स. ऑल राइट, सो ऐसे ही अगर हम जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको सेव करने के लिए एफर्ट्स करेंगे, सारे वो जो लोग हैं उनको भी रियलाइज होगा कि हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, वी नीड टू सेव इट, वी नीड टू प्रिजर्व इट, एंड दे विल नेचुरली अप्रिशिएट इट ऑल द मोर, right? And secondly, because traditional knowledge has a wide range of commercial and scientific uses, it is becoming increasingly valuable to non-indigenous outsiders. अब यहाँ पे आप योगा का एग्जाम्पल ले लो. अब योगा से क्या है, people have realized, the scientists, the doctors, the physiotherapists have realized that yoga asanas, they do make a difference. जो different yoga asanas हैं उससे फर्क पड़ता है. अगर कोई लोअर बैक पेन के लिए रेकमेंडेड है, जॉइंट पेन के लिए रेकमेंडेड है, आपके बेटर लंग्स के लिए रेकमेंडेड है. कोरोना में भी कितने लोग कर रहे थे दैट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, दैट वाज रेकमेंडेड. गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी आती थी, आई एम नॉट श्योर अगर आपने देखी है, शुरू में जो भी, क्योंकि बहुत कम केसेस थे, तो एवरी पर्सन यूज टू गेट दैट शीट. उसमें एक तो रेकमेंडेड थे कि कब कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, क्या डाइट लेनी है, एंड उसमें ये बहुत ही लाइट एक्सरसाइज भी रेकमेंडेड थी जिसमें कि योगासन्स थे, right? So see, this idea of government including yogasanas in its official advisory for COVID patients, it is sending a very important message that yes, yoga is actually, very effective medium. It's a very effective method of, recovering from coronavirus, right? So उससे क्या है, अब इसकी कमर्शियल अगर हम अंडरपिनिंग्स देखें वो क्या है, आपको मैंने बताया था, all over the world, in different European countries, in America, in Canada, even Japan side अगर हम बात करें, योगा सेंटर्स खुल चुके हैं. People are learning yoga and then they are teaching it further. वो योगा क्लासेस ले रहे हैं. So आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा मनी इन्वॉल्व है, कितना ज्यादा कमर्शियल इसका इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई है, right? And then we talked about the scientific uses. So it is becoming increasingly valuable to non-indigenous outsiders. See, now the people who are practicing yoga, they are not necessarily only from India. They are from other communities, other countries, other nations as well, right? So one unfortunate outcome of this interaction
is the situation where traditional knowledge has been gathered and used without contacting the source of knowledge. See, अब इसी चीज से बचाने के लिए ना गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिकॉज वी रियलाइज कि कैसे योगा हैज बीन अप्रोप्रिएटेड मतलब कि किसी और ने उसको अपना ही क्लेम कर लिया हो एंड वो उसमें से अपना फायदा कर रहे हो, राइट? तो इसमें क्या, जैसे जो आपकी इंजीनियरिंग में भी होगा ना कि कुछ आपने इन्वेंशन की है, कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया, आप उसका पेटेंट करवा लेते हो। जो हमारी सारी मेडिसिन होती हैं फार्मेसी में, उसका भी पेटेंट होता है, उसका मतलब डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि मे बी फॉर फर्स्ट 10 years ओनली दैट पर्टिकुलर कंपनी कैन मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट मार्केट में आ गया सो एवरीबडी कैन चेक कि उसमें कौन से सॉल्ट है। अब ये कोई जो अगर कोई मेडिसिन है, उनको पता चल जाएगा कि हाँ इसकी ये फॉर्मुलेशन है वंस इट रीचेस द मार्केट। सो उससे क्या है, जो बाकी फार्मेसी हमारी कंपनीज है वो भी उसको सेम कॉपी करके बना सकती हैं। But to protect this thing, they have the system of patents, they have the system of copyright, they have the system of intellectual property rights, right? अब हमने रियलाइज किया कि अब जो हमारी ये ट्रेडिशनल नॉलेज है इसमें तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो जिसको कुछ पता चल रहा है वो उसको अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। एंड उसमें नुकसान किसका हो रहा है? द पीपल हु हैव जनरेटेड दिस नॉलेज, राइट? द पीपल हु आर अ सोर्स ऑफ दिस नॉलेज। सो इस चीज को बचाने के लिए भी वी आर कमिंग अप, द गवर्नमेंट हैज कम अप विद वेरियस स्कीम्स। We have come up with one digital library, one digital depository, or you can call it a digital database, जहाँ पे वो इस सारी नॉलेज का एक कंसोर्टियम बना रहे हैं कि एक जगह पे ये सारी नॉलेज को इकट्ठा किया जाए, उसको डिजिटाइज किया जाए, so that इस नॉलेज में भी कुछ सिस्टम लाया जा सके, so that we can control who is using it, where these ideas are going, right? क्योंकि अब इसमें एक यही नुकसान हुआ है कि जो नॉन इंडिजिनियस आउटसाइडर है उन्होंने देखा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा मेथड है। अब अगर इसका इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एज अ बेसिस फॉर डेवलपिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड हर्बल रेमेडीज, राइट? सो इसमें क्या किया गया है, नाउ दे न्यू दैट द ट्राइबल पीपल दे आर मोर हेल्दी, दे आर फॉलोइंग अ बेटर लाइफस्टाइल, एंड वहां पे इतने डिजीजेस एंड प्रॉब्लम्स भी नहीं आई। एंड जो अगर कुछ छोटा मोटा बात होती है, दे आर एबल टू हैंडल इट विद यूजिंग हर्बल रेमेडीज। अब उनको तो एक्सेस सिर्फ हर्ब्स से ही है ना, उनको उनके पास एलोपैथिक मेडिसिन तो है नहीं है, उनके पास कोई पैरासिटामोल नहीं है, राइट? सो दिस इज हाउ दे रियलाइज कि मतलब कि ये जो प्रोडक्ट्स एंड रेमेडीज हैं दीज एक्चुअली वर्क। एंड इन्होंने सेम चीजें यूज करके अपने अब अलग से हर्बल प्रोडक्ट्स निकाल दिए, राइट? जैसे अब आपने सुना होगा एलोवेरा जूस हर कोई पी रहा है, हर कोई आंवला जूस पी रहा है, विटामिन सी के लिए कितना कुछ आ गया, वो जो ग्लोई होती है उसके कितने जूस आ गए हैं, हर एक कंपनी ने अपने वो निकाल दिए। बट वो आइडिया तो किसी एक इंडिजिनस उससे ही आया होगा ना, कम्युनिटी से, right? So I hope you are getting my message, what I am trying to say and what the author is trying to say here, right? So ये एक इसका बड़ा नुकसान है। इसी नुकसान को बचाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सिस्टम लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका रिकॉर्ड बना रहे हैं, राइट? थोड़ा इसको और एक इसका भी, ताकि हमारे पास हो, हमारे पास एक डेटाबेस हो कि हमारे हमें क्या पता है क्या नहीं पता। अगर हमें पता होगा, उसका रिकॉर्ड बना होगा, तभी हम उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम misuse or being appropriated for profits. All right. Now abuses of traditional knowledge include, again, unlicensed and unauthorized commercialization of traditional knowledge. Then we have taking images such as photographs, film and video of indigenous people, their way of life, etc. Using, reproducing or copying indigenous names, images and arts without permission, right? Again, a very big issue. Then use and misuse of symbols without permission, disclosing secret knowledge and cultural property, publishing research without recognition or reward for the knowledge holders, then entering into community research without fully explaining how the research will be used or who owns the results. Now few examples कैसे ये abuse होती है। अब आपने देखा होगा, एक तो जैसे यही वाला होगा कि अनलाइसेंस्ड एंड अनऑथराइज्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। जैसे एक ये सिंपल एग्जांपल हो गया कि किसी चीज की रेमेडी थी फॉर सम डिजीज, कोई हर्ब्स वाली रेमेडी थी, उन्होंने बाहर से कोई बंदा आया, उसने ये चीज नोटिस की, वो आइडिया ले गया एंड उसने उससे कितने सारा प्रॉफिट्स कमा लिए, उसने वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया and that is how he is earning or she is earning all the profits, and these people have no idea that this thing happened, right? देखा जाए तो ये इसके ओरिजिनेटर्स हैं, ये इसके इन्वेंटर्स हैं, they should get the credit for same, they should have also some profit, ताकि इनकी लाइफ भी बेटर हो सके। देन आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे ये हमारे डिस्कवरी वगैरह, नो डाउट दीज आर वेरी वेल रिप्यूटेड चैनल्स, वेल रिप्यूटेड जर्नलिस्ट,
they always follow the procedure, they take permission, they ask them. But sometimes क्या होता है कि ये इनके जो rights हैं they are also invaded. How? कि वो इनकी फोटोज ले लेंगे, इनको मूवी में यूज कर लेंगे, उनको पता ही नहीं है, राइट? उनकी परमिशन दी ही नहीं गई, उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया अबाउट देयर वे ऑफ लाइफ. एंड सी दे टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली. हाउ? बिकॉज ये अपनी नेचर, अपनी कम्युनिटी, अपने कल्चर की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं that for them maybe it is not there, you know, available for such commercial exploitation कि आप उसको टीवी पे सबके लिए दिखा रहे हो. So that is also wrong. Then using, reproducing or copying indigenous names, images and arts without permission, again very important कि जो इनका अपना आर्ट है, आप उसको प्रिंट करके उसके आप फैब्रिक निकाल रहे हो, आर्ट तो वो उनका है, राइट? सिमिलरली आप नेम्स वो यूज कर रहे हो या उनकी इमेजेस, उनका आर्ट, कुछ उन्होंने पेंटिंग की या वो चीज यूज कर रहे हो, जो उन्होंने कुछ बर्तन बनाए हैं मिट्टी के, आप वो यूज कर रहे हो, वो सेम डिजाइन के और कुछ चीज निकाल रहे हो. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज आपने उनकी वैलिड परमिशन नहीं ली, आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया कि दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू. देन यूज एंड मिसयूज ऑफ सिंबल्स विदाउट परमिशन. अगेन जैसे मॉडर्न डे हमारा होता है ना कि कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, वो आप नहीं यूज कर सकते, तो इधर भी आप इनके सिंबल्स यूज कर रहे हो, चाहे कॉपीराइटेड नहीं है बट एक एथिकली तो रॉन्ग चीज है. Then disclosing secret knowledge and cultural property. Again, now some tribes are still very hidden from the outside world. अब वहां पे आप लेकर अपना कैमरा पहुंच जाओ, सारे वर्ल्ड को पता चल जाए, वहां पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आने शुरू हो जाए, वो उस एरिया की इकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग. Then publishing research without recognition or reward for the knowledge holder. So आपने कोई रिसर्च किया, आपने रिसर्च पेपर लिखना है, आपको कोई डिस्कवरी आपने की है, बट आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे कि आपको वो पता कहाँ से चली, या द पीपल हु हेल्प यू डू इट. सी अब मॉडर्न एकेडमिक में देखें तो उसमें ये रॉन्ग है, ठीक है, आप पे एक्शन लिया जा सकता है, बट क्योंकि अब ये लोग उस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में नहीं आते, तो इसीलिए इनके यहाँ पे कुछ राइट्स प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं, एंड दैट इज वाई इनके राइट्स को काफी ज्यादा यू कुड से एक्सप्लॉइट किया जाता है, राइट? Then entering into community research without fully explaining how the research will be used or who owns the results. At times maybe you are entering a community, आप कोई रिसर्च करने के लिए वहां पे जा रहे हो, बट आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो कि इसका क्या implications होंगे, so that is also ethically wrong. So we'll stop here since the time is almost up, right? So I hope you enjoyed this lecture, right? Thank you for attending the class and enjoy your weekend. That will be all.